Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, in previous lecture we have discussed about the reduction of capital and purchase of shares. These were very important topics, and these were in fact the topics which needs concentration and attention. और इसमें अगर आपका concept clear होगा तो आपको बहुत सी चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी और आप फिर उसके बाद समझ सकेंगे कि issuance of shares at discount या reduction of capital या alteration of capital में क्या difference है. मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू देती हूँ कि पिछले लेक्चर में reduction of capital में हमने क्या पढ़ा था. In reduction of capital we have discussed about the methods by which a company can reduce its capital. उसमें मैंने आपको बताया कि the company after passing a special resolution and if the articles of association of that company allows, then the company can go for the process of reduction of capital, and the company can reduce its capital by following certain methods. And the ways of reducing capital are, first of all, to extinguish or reduce the liability on any of its shares in respect of the amount not paid, or to cancel any paid up share capital which is lost or not represented by the available assets, or to pay off any paid up share capital which is in excess of the needs of the company. उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल पे ऑब्जेक्शन जो करते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स, और इन क्रेडिटर्स को हमने सेटिस्फाई करना होता है, कंपनी ने सेटिस्फाई करना होता है, तब कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकती है. और रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए जब हमने क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करना है तो किन तरीकों से, सबसे पहले पे ऑफ द क्रेडिटर्स, देन दे विल नॉट रेज एन ऑब्जेक्शन ऑन द रिडक्शन ऑफ कैपिटल. सेकेंडली, टेक देयर कंसेंट, उनकी रजामंदी ले लो. थर्डली, सिक्योर देयर अमाउंट थ्रू कोर्ट. तो अगर इन तरीकों से द कंपनी कैन सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिंग क्रेडिटर्स. उसके बाद हमने देखा कि व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिड्यूस्ड शेयर्स. तो उसमें मैंने आपको बताया कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी शेल नॉट बी लायबल फॉर द अमाउंट एक्सटिंग्विश्ड बाय द वे ऑफ रिडक्शन, बट दे कैन बी held liable for the reduction of capital in certain cases. कब the members will be liable? When the liability of a creditor is not met by the company. When the liability of the creditor is not met by the company, then the members can be held liable. और क्या liability होगी members पर? Every person who was the member of the company on the day of reduction, that member shall be liable, and they will contribute for the payment of the members in case of reduction of capital. और उसके बाद मैंने आपको बताया कि why a company is required to give reasons of reduction. So the court may require the company to give reasons of reduction in order to inform the public, about the causes of reduction, कि कंपनी क्यों रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रही है. ये कोर्ट कंपनी को बाउंड करती है कि वो आवाम को, पब्लिक को बताए, उनको आगाह करे अबाउट द रीजंस ऑफ रिडक्शन एंड द कॉजेज ऑफ रिडक्शन. उसके बाद मैंने आपको बताया
companies are prohibited from purchasing their own shares, but there is an exception. और exception में मैंने आपको बताया कि employees can be given loan for the purchase of its own shares, but if this giving of loan to the employees is a part of their contract of service. और वो कौन से employees हैं जिनको हम लोन दे सकते हैं? वो है full time employees excluding directors and the chief executive of the company who before his appointment was not a director of a company. So ये हमने बताया. फिर मैंने आपको बताया about the purchase of its own shares by a listed company, और मैंने आपको बताया कि the purchase shall be authorized by a special resolution and that resolution must indicate the maximum number of shares to be purchased, the maximum price at which the shares are to be purchased and the period within which the purchase is to be made. उसके बाद मैंने आपको बताया कि the notice of the meeting in which that special resolution is going to be moved must be given, and that notice shall accompanied by an explanatory statement containing all material facts including justification for the purchase, why listed company is going to purchase its own shares and who will give funding for this purchase, and the source of funding must always be explained, and the effect on the financial position of the company after this purchase of shares, and the interest of the directors for this purchase of shares. ये मैंने आपको clearly बताया about the purchase of shares by the listed companies. उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि the purchase of shares shall be made by the company in cash and shall be out of the distributable profits. Where shares are purchased by a company on premium, the amount of premium shall be credited in the share premium account, and where purchase is made at a price lower than the nominal value of shares, the difference shall be credited to the reserve. So ये बातें थी जो मैंने आपको clearly बताई. When the listed company is going to purchase its own shares, so ये सारा कुछ बताने के बाद मैंने आपको बताया कि yes, the company can, after fulfilling these conditions, the company can purchase its own shares, and then a register will be maintained, and after the purchase of shares, और उस register में क्या होगा? The number of shares purchased, consideration paid for such shares purchased, mode of purchase, and the date of cancellation of such shares. ये तमाम उसमें दर्ज होगा. And in case of default, if a company makes default in compliance with the provisions of this section, the company shall be liable to a fine which may extend to 1 million rupees, and any officer shall also be held responsible who is knowingly and willfully party to that default, and that officer shall be punishable with imprisonment for a term which may extend up to 6 months, or with a fine which may extend to 1 million rupees, or with both. So ये वो topics थे जो मैंने आपको के साथ डिस्कस किए अपने पिछले लेक्चर में. उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्या चीज़ होती है. Yes, the company is allowed to cancel its shares, to consolidate, to subdivide, divide its shares, or as the case may be. These were the topics which we have discussed in detail in our previous lecture. Our today's lecture is about the transfer and transmission of shares. Transfer or transmission of shares. गौर करें, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं about the transfer of shares from one person to the other. मेरे शेयर्स हैं और मैं उनको किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहती हूँ.
किसी और को शेयर होल्डर बनाती हूँ और मेरी जो शेयर होल्डर है, आई एम नो मोर द शेयर होल्डर बिकॉज आई हैव ट्रांसफर माई शेयर टू द अदर पर्सन। अब दूसरा बंदा इसका ओनर है और मेरी जो मेंबरशिप है वो दैट हैज बीन सीज्ड। I am no more the member of the company because I have transferred my shares to the other person, and that other person can be the existing shareholders or anyone else. Transmission of shares भी transfer of shares है। shares एक से दूसरे बंदे के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नोयत डिफरेंट है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कुछ और चीज है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के लिए कुछ और केसेस है, उसको हम देखते हैं। The word transfer is an act of the parties by which title to property is transferred from one person to another. जिस दूसरे को हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने शेयर्स, that includes legal person. लीगल पर्सन कौन सा होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, कंपनी इज अ लीगल पर्सन। बॉडी कॉर्पोरेट, हम ये शेयर्स किसी बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी शख्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। द वर्ड ट्रांसमिशन रेफर टू ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू पार्टीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी एक ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस शेयर्स एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट है, विलफुल एक्ट ऑफ द ट्रांसफर है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी एक हम शेयर्स ट्रांसफर करते हैं ट्रांसमिशन में बजरिए कानून। कानून के जरिए जब शेयर्स एक से दूसरे को ट्रांसफर हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स a voluntary passing of property in certain shares from one person to another by presenting to the company a duly stamped and executed instrument of transfer। यानी जब एक बंदा दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो क्या होना जरूरी है? ड्यूली स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स always takes place on the instrument of transfer। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कौन आगे करता है? बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफर। जो बंदा शेयर ट्रांसफर कर रहा है या तो वो खुद इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को स्टैम्प कराएगा, उसके जरिए से ये ट्रांसफर कराएगा, या उसके बिहाफ पे कोई और। एंड ट्रांसफरी कंटेनिंग देयर नेम्स, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन along with the share certificate relating to the shares to be transferred। यानी जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स उसको हम कहते हैं ट्रांसफर, और जिसके नाम शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम कहते हैं दी ट्रांसफरी। तो ट्रांसफर ने क्या करना है? उसने ड्यूली स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ड्यूली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दैट शैल बी फाइल्ड। उसमें क्या होगा? द नेम ऑफ द ट्रांसफरी, द एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी, ऑक्यूपेशन along with the share certificate। शेयर सर्टिफिकेट जो इस बात का सबूत है, जो कि प्राइमा फेशियाई एविडेंस है ऑफ द टाइटल ऑफ शेयर्स कि जी ये बंदा मालिक था। अब जब वो मालिक किसी और को मालिक बनाने जा रहा है उस शेयर्स का तो वो जमा कराएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ साथ शेयर सर्टिफिकेट भी, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट एक्चुअली सबूत है इस बात का कि ये बंदा मालिक था जो कि अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे के नाम। Where transmission on the other hand involves the passing of the property in shares by operation of law on the happening of certain events, and what are those events? Death, insolvency or lunacy of a shareholder। ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन में शेयर की जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो रही है, लेकिन मालिक खुद ट्रांसफर नहीं कर रहा, कानून के जरिए से शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। और किन सूरतों में? हालात क्या हैं?
शेयर होल्डर की डेथ हो गई, शेयर होल्डर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, उसका दिवालिया हो गया, एंड शेयर होल्डर हैज बिकम अ ल्यूनेटिक, या वो मखबूतुल हवास है, जिसको हम आम अल्फाज में पागल कहते हैं। अगर एक बंदे की डेथ हो जाए शेयर होल्डर की, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो पागल हो जाए, उस सूरत में बजरिए कानून उसके शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या है? जब एक बंदा अपनी मर्जी से अपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर करे। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या है? जब जो शेयर होल्डर है वो उसके शेयर्स बजरिए कानून थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ आर द शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द अदर पर्सन। और ऑपरेशन ऑफ लॉ कानून के जरिए क्यों जरूरत पेश आई? क्योंकि जो शेयर होल्डर है, जो मालिक है शेयर्स का, he has died, he has become insolvent, और he may become a lunatic। तो इन तीन सूरतों में कानून के जरिए फिर इसके शेयर्स दूसरे के नाम ट्रांसफर होते हैं। The transfer of shares is a procedure by which an existing shareholders transfer his or his shares to the existing shareholders or to anyone else. Depends upon the circumstances and upon the transaction. Under the law, anyone has a right to transfer his or her own share to the existing shareholder or to anyone else. यानी हर शेयर होल्डर का ये हक है, ये उसका राइट है कि वो अपने शेयर्स जब चाहे किसी भी और को या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो ट्रांसफर करे। However, a private company may by its articles of association restrict this right to transfer of shares। यानी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर may be restricted in private companies, and the restriction is imposed by its articles of association. Section 74 to Section 81 of the Companies Ordinance 1984. These sections deal with the issuance of shares, governing the transfer and transmission of shares. यानी इन सेक्शंस में हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। What are the limitations on transfer of shares and on debentures? ये डिबेंचर का जो टॉपिक है ये आगे होगा। अब आप अपने जहन में जो रखेंगे वो सिर्फ द लिमिटेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, लिमिटेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। Every company has to transfer the shares within 45 days of the application. I am the owner of some shares in a company and I want to transfer my shares to Mr. B. I have filed an application in the company कि जी मैं अपने शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रही हूँ। मैं जो कि जिंदा हूं, ना ही बैंकरप्ट हूं, ना ही ल्यूनेटिक हूं, अपने होशो हवास में अपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर कर रही हूं। सो ये मेरा राइट है और ये कंपनी का फर्ज है कि वो मेरे शेयर्स 45 मेरी दरखास्त के 45 के दिनों के अंदर अंदर उस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे अमल दरामद कराए और शेयर्स को ट्रांसफर कराए। The company shall within 30 days or where the transferee is a central depository within 5 days from the date on which the instrument of transfer is lodged with the company will notify the defect or invalidity to the transferee, who shall after removing the identified defect shall relodge the transfer deed with the company. Got my point? Okay, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। मैंने आपको ये बताया कि मैं अपने शेयर्स अपने होशो हवास में मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रही हूँ। मैंने दरखास्त दायर की कंपनी के पास कि जी मेरे शेयर्स इसके नाम ट्रांसफर करो।
द कंपनी शेल विद इन 30, कंपनी ने 45 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर कराने हैं। अगर कंपनी ने 45 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर नहीं कराए, द कंपनी शेल विद इन 30 डेज और वेयर द ट्रांसफर इज अ सेंट्रल डिपॉजिटरी, यानी जिसके नाम शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक बनता है सेंट्रल डिपॉजिटरी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है। सो 5 दिनों के अंदर अंदर जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लॉन्च हुआ है वो बताएगा कि जी वो शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता है। कर सकता है तो 45 दिनों के अंदर अंदर वो शेयर्स एक से दूसरे को ट्रांसफर कर दे, और अगर नहीं कर सकता तो वो बता दे कि वो शेयर्स क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकता। विल नोटिफाई द डिफेक्ट और इनवैलिडिटी टू द ट्रांसफरी, हु शैल द ट्रांसफरी विल देन रिमूव दैट डिफेक्ट and then we shall relodge the transfer deed within the company. So simple, कंपनी का ये फर्ज है कि वो एक वैलिड ट्रांसफर अगर है और थ्रू वैलिड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर डीड इज वैलिड, तो कंपनी ने शेयर्स 45 दिनों के अंदर अंदर एक के शेयर दूसरे को ट्रांसफर करने। कंपनी को कोई भी उसमें डिफेक्ट नजर आया है, कोई भी इनवैलिडिटी नजर आई है, तो कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर बताएगी कि जी ये इनवैलिडिटी है, और जो कंपनी है जो ट्रांसफरी है वो उस इनवैलिडिटी को दूर करेंगे, खत्म करेंगे, एंड दे शैल रीलॉन्च द ट्रांसफर डीड विद द कंपनी। These conditions in relation to a private limited company shall be subject to such limitations and restrictions as is imposed by its articles of association, if any are there. The company shall not register the transfer of shares unless proper instrument of transfer, and that instrument of transfer is duly stamped and executed by both the transferor and transferee has been delivered to the company. यानी शर्तें हमने क्या लगाई है कि the company shall not register the transfer of shares unless proper instrument of transfer is there, and that instrument of transfer is duly stamped, दूसरी बात, and that has been executed by the transferor and the transferee। तो उसके बाद हम कहते हैं जी ये तमाम चीजें has been delivered to the company, then the company shall consider the transfer of shares. उसके अलावा the company shall not register the transfer of shares. Now I am going to tell you the procedure for transfer of shares. There is a step-wise procedure for the transfer of shares. Transfer of shares, मैं दोबारा बता दूं, what is transfer of shares? Transfer of shares is the willful act of the shareholder who in his lifetime wants to transfer his share to the other person or to the existing shareholders, and can even transfer his shares to any body corporate, to a company. So उसने अब क्या प्रोसीजर करना है जो बंदा अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है? सबसे पहले लॉन्च ऑफ ट्रांसफर डीड, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स along with duly filled in transfer deed and share certificate. दरखास्त दायर करेगा, उसके साथ ट्रांसफर डीड लगाएगा, उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट लगाएगा, and that will be filed at the registered office of the company or the registrar office by the transferee or the transferor, और उसके बाद a receipt shall be issued. So पहली बात क्या हुई? An application for transfer of shares, दरखास्त के साथ साथ along with duly filled in transfer deed and share certificate. That these documents are to be filed in the office of the registrar, and the registrar will then issue a receipt. In case transfer deed or share certificate has been lost, तो फिर उसके साथ क्या लगाएंगे हम? An affidavit, और कोई भी ऐसा evidence which supports the fact
इज प्रोवाइडेड टू द कंपनी। यानी हम कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे, एफिडेविट लगाएंगे या कोई भी सबूत, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो इस बात का सबूत दे कि जी ये इन शेयर्स का मालिक है, तो फिर हम यानी ये तब होगा इन केस दी ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट और द ट्रांसफर डीड हैज बीन लॉस्ट, टॉर्न, म्यूटिलेटेड और डिस्ट्रॉयड। तो या तो हम एफिडेविट लगाएंगे या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएंगे जो इस बात का सबूत दे, जो इस बात को सपोर्ट करे कि ये जी शेयर होल्डर है। द नेक्स्ट स्टेप इज चेक एंड वेरीफाई। द कंपनी चेक्स एंड वेरीफाइज द ट्रांसफर डीड। हमने ट्रांसफर डीड कंपनी के पास जमा कराई है, वो उसको पहले वेरीफाई करेगी कि हाँ वाकई ये मालिक है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ओनली इन केस प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ड्यूली स्टैम्प्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द स्टैम्प्ड एक्ट, विटनेस्ड, गवाहों की मौजूदगी है, एग्जीक्यूटेड बाय द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी बोथ, एंड इज डिलीवर्ड विद द शेयर सर्टिफिकेट। उसके बाद हम कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करती है, यानी वो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को चेक करती है, वेरीफाई करती है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रजिस्टर किया जाता है। इन केस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड एनी अदर कंडीशन और देयर आर एनी शॉर्टकमिंग्स इन द लॉ एंड इन articles of association of the company issues a notice to the presenter granting such transfer for further verification. There is another step, approval. कंपनी जो कि अपने शेयर होल्डर जो कि अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, वो अप्रूवल लेगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स एज द केस में बी। Register of members. Necessary entries are made for entering the name of transfer in the register and recording transfer against the name of the transferor. अपने जहन में आपने याद रखना है, मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूं, ट्रांसफरर और उसके साथ साथ ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरर कौन होता है? जो शेयर्स का मालिक होता है, शेयर होल्डर होता है, जिसको हम जो कि शेयर्स मुंतकिल करता है, ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफरी जिसके नाम शेयर्स मुंतकिल हो। एक मुंतकिल कुनिंदा होता है, एक मुंतकिल इलय होता है। ट्रांसफर होता है जो कि शेयर्स ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफरी होता है जिसके नाम ट्रांसफर होते हैं। फिर उसके बाद जो स्टेप है वो है शेयर सर्टिफिकेट। Entry is made in the memorandum of transfer column on the reverse of the share certificate. शेयर सर्टिफिकेट के एक रिवर्स पे एक कॉलम होता है जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफर, और उस पे हम फिर एंट्री करते हैं ऑन दैट मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफर, एंड उसके बाद हम वी मेक द ट्रांसफरी एज शेयर होल्डर इंस्टेड ऑफ द ट्रांसफरर। उसके बाद जब हम ये एंट्री कर देते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफरी को शेयर होल्डर समझते हैं। डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जी ये एंट्री हो गई। जब एंट्री हो गई और हमने ट्रांसफरी को अब शेयर होल्डर बना लिया, देन शेयर सर्टिफिकेट इज सेंड टू द ट्रांसफरी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और वेल रिप्यूटेड कोरियर सर्विस, एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसेप्ट इज केप्ट ऑन रिकॉर्ड। हमने कोरियर सर्विस से या पोस्ट के जरिए से शेयर सर्टिफिकेट अब भिजवा देना है ट्रांसफरी को, ताकि उसको पता चले कि ही इज एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड एज अ शेयर होल्डर। ये तो स्टेप्स थे अबाउट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, स्टेप्स टू बी टेकन। अब मैं आपको बताऊंगी अबाउट द प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। There are certain steps involved in the transmission of shares. सबसे पहले है जनाब intimation. As soon as intimation of death, lunacy or insolvency of a member is received, यानी हमें पता चल गया कि शेयर होल्डर हैज डाइड
has become lunatic or has become an insolvent. So this fact is required to be recorded in the relevant register of the company. यानी उसको रिकॉर्ड कराओ कि जो शेयर होल्डर है has died, has become lunatic or has become insolvent. Then the death certificate. In case of death, जो उसके वरसा होते हैं, कानूनी वरसा, legal heirs, they are required to produce death certificate issued by the relevant authorities. So when death certificate is there, तो उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जी शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं उनकी ट्रांसमिशन करनी है. एंड देन एप्लीकेशन, यानी डेथ सर्टिफिकेट है ये, तो उसके बाद हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. द लीगल हायर्स और सक्सेसर्स आर रिक्वायर्ड to make an application to the company for the transmission of shares duly supported with the documentary evidence showing nomination or lawful award of applied property to him. यानी उन वरसा में से या उन सक्सेसर्स में से कोई बंदा कहे कि जी इसके शेयर्स का नॉमिनी मैं हूं, तो वो इस बात का सबूत देगा. क्या सबूत देगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा कि वो एविडेंस ये होगा that documentary evidence will actually shows that he is the owner of the shareholder or shares should be transferred on his name. Yani documentary evidence is required by the legal heirs or the successors if they are making an application to the company for the transmission of shares. उसके बाद approval for transmission of shares is sought from the board of directors or committee of directors as the case may be. यानी उससे approve कराओ कि you are the nominees. approve कहाँ से कराना है? board of directors से और committee of directors से. register of members. Necessary entries are made for entering the name of successors in the register and recording transfer against the name of deceased. वो जो मरहूम है, जो deceased है, उसके नाम के बाद हम उसका जो नॉमिनी होगा, जो उसका जो सक्सेसर होगा, उसका नाम हम डिसीज के नाम के आगे लगा देंगे. एंड नेसेसरी एंट्रीज आर मेड फॉर एंटरिंग द नेम ऑफ successor or nominee in the register and will record that transfer. Share certificate. उसके बाद हमने एंट्री करनी होगी मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफर पे. मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफर का जो कॉलम होता है ये रिवर्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट होता है. उस पे हम एंटर करते हैं दी सक्सेसर को एज अ शेयर होल्डर. जब उस सक्सेसर ने, जब उस नॉमिनी ने हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दिया है कि ही इज द शेयर होल्डर हु ही इज एक्चुअली बीइंग नॉमिनेटेड बाय द शेयर होल्डर हु हैज डाइड, उसके बाद क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफर का जो कॉलम होता है ये जो शेयर सर्टिफिकेट के बैक पर, उस पे हम एंट्री करते हैं. And then the share certificate is sent to the successor and acknowledgement of receipt is kept on record. So मैंने आपको steps बताए for the procedure for transfer of shares and the steps to be taken for the transmission of shares. ये step wise ये दोनों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स भी होती है, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को भी एंटर कर दिया जाता है और उसमें नए शेयर होल्डर का नाम डाल दिया जाता है. और इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन जो कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में होती है, इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेसी,
इन सूरतों में जब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होती है उसके लिए भी सर्टेन प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, दी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पे हमने उसकी एंट्री करनी होती है, और फिर शेयर सर्टिफिकेट का जो मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफर का जो कॉलम है उसमें एंटर कर दिया जाता है, और फिर फाइनली द शेयर सर्टिफिकेट इज सेंट टू द सक्सेसर एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसेप्ट इज kept on record. So these were the steps to be taken for the transmission of shares. इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेक्शन 76. इसमें मैं आपको दोबारा बताती हूं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मैं आपको सैलिएंट फीचर्स इनफैक्ट बता रही हूं अबाउट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. अब आपने स्टेप्स देख लिए हैं, डिफरेंट स्टेप्स, लेकिन सैलिएंट फीचर्स हमें इसको और सैलिएंट फीचर्स जब आप इसको फर्दर सुनेंगे तो आपको ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और क्लियर हो जाएगा. सैलिएंट फीचर्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ये है कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है इसमें हमें बताया जाता है कि हाउ वुड दी पर्सन जिसका ये राइट है कि वो अपने शेयर्स ट्रांसफर करे, तो वो किस तरीके से अपने शेयर्स ट्रांसफर करेगा. सो द मोड ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर्स are provided by the articles of association. An application for the registration of transfer of shares made by transfer of transferee, बता चुकी हूं आपको क्या जरूरत किस चीज की है. दरखास्त के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत है. इन केस ऑफ लॉस ऑफ ट्रांसफर डीड टू द डायरेक्टर जरूरत है हमें आप एक दरखास्त दायर करेंगे अगर आपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं. फिर देन वी नीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, एंड इन केस ऑफ लॉस ऑफ ट्रांसफर डीड द डायरेक्टर मे रजिस्टर द ट्रांसफर विद इंडेमनिटी. उस पे डायरेक्टर उन्हें कहेगा कि जी दैट यू हैव लॉस्ट द ट्रांसफर डीड, आपको अब कुछ हर्जाना देना पड़ेगा. इंडेमनिटी डायरेक्टर उनसे मांगेगा, हर्जाना तलब करेगा, और उसके बाद वो उस ट्रांसफर को रजिस्टर करेगा. शेयर होल्डर हैज द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड्स अदरवाइज. यानी जब तक के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसके बरक्स कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, सो ये शेयर होल्डर्स का राइट है कि वो अपने शेयर्स ट्रांसफर करें. इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन इन द आर्टिकल्स, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर, then the company has no inherent power to refuse the bona fide transfer of the shares in the company. Share certificate should be ready for delivery within 45 days. I've already told you that transferring of shares is the inherent right of the shareholder. If there is no restriction in the articles of association, then the company has no inherent power to refuse such transfer of shares. The company is required to deliver the share certificate within 45 days. Yes, the transfer of shares can be refused by the director. The director is the person who can refuse the transfer of shares. If the transfer deed is invalid, जब डायरेक्टर को लगे कि जो ट्रांसफर डीड उसके पास आई है that is invalid, in that case the director can refuse the transfer of shares. As I've told you, the director can refuse the transfer of shares when the transfer deed is invalid, but the director must notify this fact to the applicant within 30 days कि जी हम आपके शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर रहे, और where the transferee is a central depository within 5 days. तो फिर 5 दिनों के अंदर उनको बताओ कि जी we are not going to transfer your shares because your transfer deed is invalid. Within 5 days from when the transferee is a central depository from the date on which the instrument of transfer was lodged with the company. So, in simple words, the director cannot refuse the transfer of shares unless the transfer deed is invalid.
If the transfer deed is invalid, the director can refuse the transfer of shares, and when the director has refused the transfer of shares, he must notify this fact within 30 days, and if the transferee is a central depository, within 5 days from the date on which the instrument of transfer was lodged with the company. In case of a private company, I've told you कि private company में transfer of shares पे restriction होती है. So if any restriction imposed on transfer of shares by the articles, then the transfer of shares shall be subject to those restrictions. यानी the shareholder will have to follow those restrictions which are imposed on the transfer of shares in the articles of association. And in case of default, company and officers shall be liable to a fine not exceeding 20,000 rupees and further fine not exceeding 1,000 rupees for every day for which the default continues. If the director has refused the transfer of shares, तो फिर जो शेयर होल्डर ये समझ रहा है कि एवरीथिंग इज ओके, द ट्रांसफर डीड इज नॉट इनवैलिड, और डायरेक्टर समझता है कि द ट्रांसफर डीड इज इनवैलिड, दैट इज व्हाई द डायरेक्टर हैज रिफ्यूज्ड द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. सो जो बंदा ये समझ रहा है, जो शेयर होल्डर ये समझ रहा है कि उसका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स उसका हक है, और जबकि डायरेक्टर ने उसको रिफ्यूज कर दिया है, तो उसके पास क्या ऐसा रास्ता है? तो उसके पास रास्ता है अपील का. अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 78A ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. अंडर सेक्शन 78A, अ पर्सन जिसके शेयर्स के ट्रांसफर को रिफ्यूज कर दिया गया है, ही मे मेक एन अपील टू द कमीशन SECP against any refusal to register the transfer of shares. An appeal shall be made within 2 months of the receipt of the notice of refusal of the transfer of shares. कंपनी ने कहा जी आपको, जिस दिन कंपनी ने कहा कि आपके शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, जिस दिन आपको वो नोटिस मिला उस दिन से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपील का हक नहीं रहेगा. सो कानून के अंदर आपको 2 महीने का टाइम दिया गया है. उस 2 महीने के अंदर अंदर द शेयर होल्डर कैन मेड एन अपील टू द कमीशन टू द SECP. और जब SECP कमीशन के पास अपील फाइल हो जाती है, ड्यू जो स्पेसिफिक टाइम है 2 मंथ्स का, उसके अंदर अंदर अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, उसके बाद कमीशन ने क्या करना है? द कमीशन मे डायरेक्ट दैट द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी और इट नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड. यानी डायरेक्टर ने फैसला किया कि शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे. शेयर होल्डर ने अपील की कमीशन के पास कि मेरे शेयर्स ट्रांसफर करो उसके नाम. अब कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो या तो कहे कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन जो भी है शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी और इट नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड, कि या तो वो रजिस्टर करो या रजिस्टर ना करो. कमीशन दोनों फैसले कर सकती है. और उसके बाद कंपनी इज बाउंड टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कमीशन विद इन 15 days ऑफ द रिसेप्ट ऑफ दैट ऑर्डर ऑफ द कमीशन. अब जब कमीशन के पास अपील आई है, कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो या तो कंपनी को कहे कि इस ट्रांसफर को रजिस्टर करो या ना करो. दोनों सूरतों में द कंपनी इज बाउंड टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कमीशन विद इन 15 days ऑफ द रिसेप्ट ऑफ द ऑर्डर. कमीशन ने जब ऑर्डर दे दिया, कंपनी ने 15 दिनों के अंदर अंदर उस पर अमल दरामद करानी है. या तो अगर कमीशन ने कहा है कि रजिस्टर को ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रजिस्टर करो, तो कंपनी रजिस्टर करेगी. और अगर कमीशन ने कहा नीड नॉट टू रजिस्टर दिस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो कंपनी रजिस्टर नहीं करेगी. और अगर कंपनी ने ये बात नहीं मानी SECP की,
सो क्या होगा? इन केस ऑफ डिफॉल्ट, every director or officer of the company shall be punishable with fine which may extend to 500 for every day during which the default continues. यानी ये penalty होगी. Section 79 says about the transfer of shares to successor in interest. The transfer of shares from a deceased member to his lawful nominee or successor in interest. यानी अब हम बात कर रहे हैं शेयर के ट्रांसफर को उस मरहूम जो बंदा जिसकी डेथ हो गई है, जो शेयर होल्डर था, जो मालिक था, हम बात कर रहे हैं जब उसके शेयर्स ट्रांसफर होंगे या तो उसके लॉफुल नॉमिनी के नाम जिसको उसने नामजद किया था या फिर सक्सेसर इन इंटरेस्ट के नाम. ये दोनों के नाम ट्रांसफर होंगे ऑन एप्लीकेशन और दैट एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय द नॉमिनी और सक्सेसर इन इंटरेस्ट एंड दैट शैल बी सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग नॉमिनेशन और लॉफुल अवार्ड ऑफ द रेलेवेंट प्रॉपर्टी. यानी एक ये जो नॉमिनी है या जो सक्सेसर इन इंटरेस्ट है, ये एक सबूत लाएंगे कि जी हाँ ये नॉमिनी है और ये सक्सेसर इन इंटरेस्ट है. जब वो ये इस प्रॉपर्टी के बारे में सबूत लाएंगे तो तब उसके बाद उनका नाम एंटर होगा एज अ मेंबर. इज इट क्लियर? सेक्शन 79 क्लियरली बताता है कि द शेयर्स शैल बी ट्रांसफर्ड from the deceased, the one who has died, from that person to the lawful nominee or to the successor if they have proved themselves as the nominee or successor in interest. And they will prove that by providing some documentary evidence. When they have satisfied the company by providing some documentary evidence about their nomination or about the lawful award of the relevant property of such nominee or successor in interest, then they shall be entered as member. यानी दोनों का सबूत लाना और वो सबूत भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना लाजमी है कि हाँ जी उस डिसीज के बाद अब इनमें से कोई नॉमिनी या शेयर सक्सेसर इंटरेस्ट ये जो है ये अब शेयर होल्डर होंगे उस मरने वाले के बाद. इन केस द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड टू द नॉमिनी ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर, तो उस सूरत में क्या होगा? देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कंसिडर वेयर द shares are transferred to the nominee of a deceased member, and these points are clearly discussed under section 80 of the Companies Ordinance 1984. section 80 हमें कहता है कि एक बंदा जो कि डिसीज्ड है, मरहूम है और वो कुछ शेयर्स का हकदार है, शेयर्स का मालिक है, तो ये बात जहन में रखें कि जब भी मरने से पहले जब भी वो इन शेयर्स का मालिक बना था, जब भी उसका इंटरेस्ट कंपनी में आया था, कंपनी में उसका इंटरेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम, तो उसी वक्त उस बंदे ने किसी को नॉमिनेट कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे शेयर्स का हकदार ये बंदा होगा. जिस तरह हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं और हम उसमें कॉलम फिल करते हैं नेक्स्ट ऑफ किन कि मेरे बाद इस अकाउंट में जो पैसे हैं या इस अकाउंट का हकदार ये बंदा होगा, बिल्कुल इसी तरह अ पर्सन मे ऑन एक्वायरिंग इंटरेस्ट इन अ कंपनी एज अ मेंबर at any time after acquisition of such interest deposit with the company a nomination conferring on one or more persons
the right to acquire the interest in shares specified in the event of death. यानी कोई भी बंदा जब उसके किसी कंपनी में शेयर्स आ जाते हैं, जब उसका कंपनी में इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो बंदा डिपॉजिट करता है कंपनी के पास एक नॉमिनेशन, जिसमें वो एक बंदे को या एक से ज्यादा बंदों को ये हक देता है कि मेरे मरने के बाद ये एक बंदा या ये बंदे या ये चंद अफराद मेरे शेयर्स के हकदार होंगे, ये शेयर होल्डर्स होंगे. सो डिपॉजिट the person on acquiring interest in a company must deposit the nomination. The nomination must be deposited by the person, by the shareholder when he has acquired interest in a company. और उस nomination जो कि वो deposit करेगा, उसमें वो अपना ये शेयर, ये जो राइट, जो इसका जो इसका जो शेयर्स है वो किसी एक या ज्यादा के नाम, वो उसको एक या ज्यादा बंदों को वो नॉमिनी बनाएगा, नामजद करेगा कि मेरे बाद, मेरी मौत के बाद ये लोग इन शेयर्स के हकदार होंगे, मालिक होंगे. उसके साथ साथ ये जो बंदा है, जो शेयर होल्डर है, वो अपनी जिंदगी ही में ही विल स्पेसिफाई कि कौन बंदा कितना हकदार होगा. If he has nominated more than one person, so वो कहेगा जी ये 10% हकदार है, ये 20% हकदार है, ये 50% हकदार है. So the person must specify the extent of right to conferred upon each of nominee. Simple. जब कोई बंदा शेयर होल्डर बनता है, वो डिपॉजिट करता है नॉमिनीज को, वो आइडेंटिफाई करता है, वो बताता है कि ये मेरे बाद ये मेरे नॉमिनीज हैं या ये मेरा नॉमिनी है, एक या एक से ज्यादा बंदे. और जब उसने एक या एक से ज्यादा बंदे नॉमिनेट कर दिए, सो द शेयर होल्डर मस्ट स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ राइट वेयर द मेंबर नॉमिनेट्स मोर देन वन पर्सन. He shall specify in the nomination the extent of right to conferred upon each of nominee. And when a person has been nominated, and that nominated is deposited with the company, when the nomination is made, deposited with the company, and that nomination has conferred upon any person the right to receive the whole or any divisible parts of interest, the said person shall exclude all other persons when the actual shareholder has died, and then that person, the nominee, shall become entitled to the exclusion of all other persons and will become the holder of shares. यानी जब हमने एक को नॉमिनेट कर दिया और जिस बंदे ने नॉमिनेट किया है, जब उस शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जिसको उसने नॉमिनेट किया होता है वो शेयर्स का हकदार होता है, होल्डर ऑफ शेयर होता है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स. So the nominee exclude all others on the death of member, and he is now entitled to become the holder of shares. And on receipt of proof of the death of the member, the transmission of the said shares shall be registered in favor of the nominee to the extent of his interest, unless. समझने की बात है कि जी जब हमारे पास सबूत आ गया कि जी इस बंदे की डेथ हो गई है और अब हमने ट्रांसमिशन करनी है शेयर्स की इन फेवर ऑफ द नॉमिनी, तो हम ये ट्रांसमिशन करेंगे, नॉमिनी के नाम शेयर्स ट्रांसफर करेंगे. बट इफ सच नॉमिनेशन can at any time varied by another nomination made and deposited before the death of the member in like manner or expressly cancelled by notice in writing to the company. Nominee, I have nominated a person,
that he will be the holder of my shares after my death. But that nomination can be cancelled, can be taken place, or can be varied by another nomination before my death. यानी मैं अपनी जिंदगी में अपनी नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकती हूँ. मैं ये कह सकती हूँ कि जी मेरे बाद ये बंदा जो मैंने नॉमिनेट किया है, अब चूंकि मैं जिंदा हूँ, आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस नॉमिनेशन और मैं इसकी जगह किसी और को नॉमिनेट कर रही हूँ. यानी द शेयर होल्डर ही इज अलाउड to change the nomination and to make another nominee before the death. So the nomination can be cancelled by notice in writing to the company. Such nomination at any time become invalid by reason of the happening of some contingency. मेरी ये नॉमिनेशन मेरी मौत के बाद भी इनवैलिड करार दी जा सकती है. किस सूरत में? ऑन द हैपनिंग ऑफ सम कॉन्टिंजेंसी. यानी मैंने आपको दो सूरतें बताई. जब एक बंदे ने एक किसी को नॉमिनेट कर दिया, आई हैव नॉमिनेटेड के जी मेरे बाद दिस पर्सन विल बी दी होल्डर ऑफ माई शेयर्स. अब मैं जिंदा हूं, आई कैन कैंसल माई नॉमिनेशन and I will give a notice in writing to the company कि जी मेरा नॉमिनी अब ये नहीं है, ये है. अपनी जिंदगी में मैं ये कर सकती हूँ और यही मेरी नॉमिनेशन मेरी मौत के बाद भी इनवैलिड करार दी जा सकती है, बट ऑन द हैपनिंग ऑफ सम कॉन्टिंजेंसी. यानी मैंने एक शर्त लगाई थी कि जी ये मेरे शेयर्स का हकदार तब होगा जब ये बंदा ये काम करेगा. यानी मैंने उसके साथ एक शर्त आयद कर दी, एक कॉन्टिंजेंसी लगाई. सो सच नॉमिनेशन एट एनी टाइम बिकम्स इनवैलिड बाय रीजन ऑफ द हैपनिंग ऑफ सम कॉन्टिंजेंसी. या अगर इसने ये किया तो ये मेरे शेयर्स का हकदार नहीं होगा. तो जब मैंने शर्त आयद कर दी और मेरी उस शर्त के बरक्स कुछ हो गया, सो दैट नॉमिनेशन कैन बिकम इनवैलिड. If the said person predeceases the member, the nomination shall become void and of no effect. अब एक और सिचुएशन है. वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि I have nominated someone, Mr. A, to become the holder of my shares after my death. But Mr. A, जिसको मैंने नॉमिनेट किया था अपनी डेथ के बाद कि वो मेरे शेयर्स का हकदार होगा, वो मुझसे पहले मर गया. इफ द नॉमिनी प्रीडिसीजेस द मेंबर, तो फिर क्या होगा? उस सूरत में दैट नॉमिनेशन शैल बिकम वॉइड एंड ऑफ नो इफेक्ट. क्यों वॉइड होगी? क्योंकि शेयर्स का जो असल मालिक है, जो शेयर होल्डर है असल, वो तो जिंदा है. नॉमिनेशन तो उसने की थी. अब द नॉमिनी predeceases the member. The member is there, so that nomination shall become void and of no effect. उसका फिर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. तो आपने गौर किया, मैंने आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताई कि जब शेयर्स हम ट्रांसफर करते हैं नॉमिनी को. सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये थी कि जब भी कोई बंदा शेयर होल्डर होता है, so on acquiring interest in a company, वो बताएगा कि जी ये मेरे नॉमिनीज हैं या ये मेरा नॉमिनी है. The shareholder shall inform the company, shall deposit with the company a nomination कि जी either one person or more than one person, they will have the right to acquire the interest in the shares after my death. एक पहली बात मैंने ये आपको बताई. फिर मैंने आपको बताया कि जब कोई बंदा जो शेयर होल्डर होता है, जो शेयर्स का मालिक होता है, जब वो एक नॉमिनेशन बनाता है, इफ ही हैज नॉमिनेटेड मोर देन वन पर्सन, तो वो लाजमी बताएगा कि ये अगर मैंने 3 बंदे नॉमिनेट किए हैं तो कौन कितना हकदार है, ताकि बाद में उन शेयर्स पे लड़ाई ना हो. सबको पता हो द एक्सटेंट ऑफ राइट.
So the nomination must clearly mention the extent of right to be conferred upon each of nominee. उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर कोई बंदा नॉमिनेट हो गया है एंड द नॉमिनेशन इज डन एंड डिपॉजिटेड विद द कंपनी, तो उसके बाद दैट नॉमिनी हैज एक्सक्लूडेड ऑल अदर पर्सन्स और ही शैल बिकम इंटाइटल्ड टू बिकम द होल्डर ऑफ शेयर्स. यानी उसके बाद कोई और अगर कोई उसके वो रसा होंगे तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा बिकॉज ही इज पर्टिकुलरली द नॉमिनी ऑफ द शेयर होल्डर. जिसको उसने नामजद किया है वो नॉमिनी एक्सक्लूड कर देगा बाकी तमाम को और सिर्फ वही हकदार होगा टू बिकम द होल्डर ऑफ द शेयर्स. उसके बाद मैंने बताया कि वो ये जितनी भी मैंने आपको नॉमिनेशन की बातें बताई, I've told you that the nomination can be cancelled, can be changed if the if the member is still there and he wants to change the nomination. जिसको उसने नॉमिनी बनाया है अब वो उसको नॉमिनी नहीं बनाना चाहता, so such nomination can at any time be varied by another nomination. यानी मालिक जो है, जो शेयर होल्डर है, जो मालिक है शेयर्स का, वो इस बात की उसको इजाजत है कि वो नॉमिनेशन को किसी भी टाइम खत्म कर दे और किसी और को नॉमिनेट कर दे. एंड सच नॉमिनेशन एट एनी टाइम बिकम इनवैलिड बाय रीजन ऑफ द हैपनिंग ऑफ सम कॉन्टिंजेंसी. और ये ना सिर्फ वो अपनी जिंदगी में उसको वो चेंज कर सकता है, अपनी जिंदगी के बाद अगर उसने इस नॉमिनेशन के साथ कोई शर्त लगाई हो और बाद में वो शर्त के बरक्स हो जाए, जो उसने एक कंडीशन लगाई थी कि जी हाँ ये मेरे बाद मेरे शेयर्स का हकदार है, लेकिन अगर इसने ऐसा किया तो ये शेयर्स का हकदार नहीं होगा. सो ऑन द हैपनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंसी जो वो है वो नॉमिनेशन को हम इनवैलिड करार दे सकते हैं. और एक तीसरी सूरत मैंने आपको बताई थी कि अगर मैंने अपने शेयर्स के लिए एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया है और जिसको मैंने नॉमिनेट किया दैट पर्सन प्रीडिसीजेस मी, प्रीडिसीजेस द शेयर होल्डर, द मेंबर, तो उस सूरत में द नॉमिनेशन शैल बिकम void and of no effect. The title of shares of deceased shareholder is transferred to his lawful successor on application made by the successor. Nominee of deceased member on receipt of proof of death of the member with share certificate. अब कौन कौन नॉमिनी हो सकता है? The spouse, father, mother, brother, sister, son और daughter, चाहे वो real हो, stepped हो और adopted हो. These persons can be nominated. Transfer of shares by nominee or legal representative. Transfer of the shares by nominee or legal representative shall be valid if he had been a member at the time of execution of the instrument of transfer. So, बता चुकी हूँ मैं आपको ट्रांसमिशन क्या है, पासिंग ऑफ टाइटल ऑफ और प्रॉपर्टी इन द शेयर्स. शेयर की जो प्रॉपर्टी होती है जब हम ये किसी के नाम, जब ये ट्रांसफर हो किसी और के नाम, बट by operation of law and on the happening of certain event like death, insolvency or lunacy of shareholders. I hope कि transfer of shares and transmission of shares आपको clearly समझ आ गया होगा. उसमें मैंने आपको clearly बताया कि जी transfer of shares एक right है शेयर होल्डर का, वो अपने शेयर्स, एक बंदा अपने शेयर दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकता है. बट द डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इफ द ट्रांसफर डीड इज इनवैलिड और डिफेक्टिव. लेकिन अगर वो ये ट्रांसफर नहीं कर रहा सो उसने
30 दिन के अंदर अंदर बताना है, या अगर वो सेंट्रल रिपोजिटरी को ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसने बताना है 5 दिनों के अंदर अंदर कि ये सॉरी द कंपनी इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर द शेयर्स। और उसके बाद जो शेयर होल्डर है उसके पास अपील का हक भी है, और वो ये अपील करेगा कमीशन के पास अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द डायरेक्टर्स by the company. Now the company is bound to give effect to the order of the commission and to implement that decision within 15 days. और अगर कंपनी ने कमीशन के फैसले पर अमल दरामद ना कराया, in that case every director or officer of the company who is in default shall be punishable with fine which may extend to 500 rupees for every day during which the default continues. So, अब मैं आपको बताती हूँ differences between the transfer and transmission. Transfer of shares is the passing of title or property and it is the deliberate act of the shareholder. यानी मैं shareholder हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपने शेयर जब दूसरे के नाम ट्रांसफर करती हूँ, इसको हम कहते हैं the transfer of shares. Transmission जो है ये deliberate act नहीं है, मालिक जो शेयर होल्डर है वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर रहा। ट्रांसमिशन इज द पासिंग ऑफ टाइटल और प्रॉपर्टी इन शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन अ मेंबर ट्रांसफर हिज शेयर्स टू सम अदर पर्सन ऑन सेल, गिफ्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अपनी जिंदगी में जब एक बंदा अपने शेयर्स दूसरे को बेचे या गिफ्ट करे। Transmission, on the other hand, takes place on the death, insolvency and lunacy of a shareholder. In transfer of shares, the title to holding and the right to transfer passes to the transferee, जिसके नाम हम मुंतकिल कर रहे हैं। Direct holding of the right to transfer passes to him, जिसके नाम शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसके पास ही मलकियत जाएगी। लेकिन ट्रांसमिशन में ऐसे नहीं होता। द टाइटल टू शेयर्स एंड द राइट टू ट्रांसफर देन passes to the executor or administrator of the deceased, जो कि मरहूम होता है, जो कि मर चुका होता है, उसके एग्जीक्यूटर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं उनके पास हक जाता है। और टू द ऑफिशियल अजाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट, कानूनी मुख्तार जो होता है, जिसका जो बैंक करप्ट हो चुका होता है, जो दिवालिया जिसका हो चुका होता है, उसके ऑफिशियल अजाइनी के पास राइट जाता है। और इन केस ऑफ ल्यूनेसी, जो बंदा पागल हो चुका होता है, उसके जो टाइटल ऑफ शेयर्स जो है दैट पासेस टू हिज गार्डियन, उसके जो गार्डियन उसका होता है उसके पास राइट जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफर में ट्रांसफरी के पास जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन में डिसीज्ड का जो टाइटल ऑफ शेयर है वो जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के पास, और जो इंसॉल्वेंट होता है उसका टाइटल ऑफ शेयर जाता है ऑफिशियल असाइनी के पास, और ल्यूनेटिक का टाइटल ऑफ शेयर जाता है गार्डियन के पास। In transfer, a duly stamped and properly executed instrument of transfer has to be lodged with the company for registration. लेकिन ट्रांसमिशन में हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नहीं चाहिए होता। Only probate, letter of both administration and succession certificate or court order is to be produced by the legal representative. यानी हमें चाहिए होता है प्रोबेट इज द एविडेंस ऑफ विल, तो ये हमें चाहिए होता है। और हमें लेटर ऑफ ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है ये नहीं चाहिए होता। सो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में हमने द मोड ऑफ ट्रांसफरिंग पढ़ा कि हाउ द कंपनी द शेयर होल्डर वुड ट्रांसफर हिज शेयर्स टू द अदर पर्सन। फिर हमने पढ़ा कि अगर डायरेक्टर ट्रांसफर को रिफ्यूज करता है तो किन सूरतों में कर सकता है, और फिर वो
इफ द डायरेक्टर हैज रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो उसके बाद उसके पास वो कंपनी क्या करेगी, द कंपनी के पास राइट होता है, राइट ऑफ अपील, एंड द अपील शैल बी मेड टू द कमीशन, टू द SECP अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और फिर मैंने आपको बताया कि इन केस द ट्रांसफर ऑफ शेयर इज in case the transfer of shares there is a nominee, so nominee of a deceased जब होगा, जब किसी बंदे ने अपनी मौत के बाद किसी को नॉमिनेट कर दिया होगा, तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट समझाए कि जब भी नॉमिनेशन होती है, किसी को हम नॉमिनी करते हैं, तो हम बताते हैं जी कि इफ आई एम द शेयर होल्डर, इफ आई हैव नॉमिनेटेड समवन, आई विल डेफिनेटली मेंशन क्लियरली कि जी ये नॉमिनी है या एक से ज़्यादा नॉमिनीज है। जब एक से ज़्यादा नॉमिनीज होते हैं, द शेयर होल्डर मस्ट स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ राइट कि कौन सा नॉमिनी कितना हकदार होगा। और अगर फिर मैंने आपको डिफरेंट सूरतें बताई कि अगर नॉमिनी जो है उसने अगर जो शेयर होल्डर है उसने कहा है कि जी ये जिसको मैंने नॉमिनी का किया है ये तब मेरे शेयर्स को का मालिक होगा जब मेरी मौत के बाद उसने कोई भी उसके साथ कॉन्टिजेंसी लगाई है, शर्त लगाई है, और अगर इस शर्त के बरक्स होता है तो वो नॉमिनेशन विल बिकम इनवैलिड। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इफ द नॉमिनी प्री डिसीजेस द मेंबर, सो द नॉमिनेशन विल बिकम void and will be of no effect. So these are the different points which we have discussed under the topic transfer to nominee of a deceased member, section 80 of the Companies Ordinance 1984. और लास्ट में मैंने क्लियरली आपको डिफरेंसेस बताए बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी अबाउट द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।